Thank you for joining us this Sunday morning. If you are attending this webinar, that means you are a concerned parent and you're very concerned about your career. I am Anuradha Kher. I am CEO of EdTalk Consulting. EdTalk Consulting is a firm which has been actively engaged in benefiting children through school education and parent education. We are happy to have you with us, and to honor your presence, we will send certificate of participation on your email addresses. To make this session more fruitful, we expect courtesy from the participants. Please keep your cameras on during the session. If you have any question, keep it till the end. Raise your hand or you may put the question in the chat box. Our experts will try to answer all the questions within the session, but if some questions are left, we will personally contact you to answer them. So we know that the world is changing and at a much faster rate than expected. With AI standing at our doorstep and government revolutionizing the education sector, we all are facing one common question: what to do after 12th? To answer questions such like these, we have with us today Dr. Nivriti Mishra, founder of Soul Samvad and a renowned psychologist, corporate trainer, parenting coach, career counselor, teen and youth counselor. She is doctorate in management with more than 18 years of experience in corporate and academics. We also have with us today Mrs. Kanchan Sumit Porwal, who is founder of Career Guidance for You, a certified coach from University of California and Edu Milestones, and a certified parenting coach from Deep. She has more than 12 years of experience in education and counseling and is on a mission to guide 1 lakh career aspirants. Welcome, ma'am. We are honored to have you both on this webinar. Thank you. Nivriti ma'am, the first question that comes in every parent's mind is why career counseling? Thank you so much for having me on board, and I'm so glad Sunday morning so many of you could join us. तो बिल्कुल सबसे यक्ष प्रश्न है आज के समय में कि करियर काउंसलिंग क्यों? मैं आपका अटेंशन एक मूवी सीन की तरफ ड्रॉ करना चाहती हूँ. जब भी मेट पिक्चर हम सबने देखी है शाहिद कपूर और करीना कपूर की, और उसमें फर्स्ट सीन जब मूवी ओपन होती है, फर्स्ट सीन में ही हम देखते हैं शाहिद कपूर टिकट काउंटर पे खड़े हैं और कह रहे हैं टिकट दे दो. तो सामने वाला जो का ऑफिशियल है वो पूछता है कहाँ की, तो वो कहता है जहां की. बट लाइफ ऐसी नहीं है कि जहां की टिकट मिल जाए वहां चलते हैं, ऐसी लाइफ नहीं है. लाइफ में हमें प्लानिंग के साथ काम करना होता है, और करियर हमारी लाइफ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसीलिए आज के समय पे करियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आज के समय में करियर काउंसलिंग, और पहले जब मैं छोटी थी तब करियर काउंसलिंग का, या जब मैं कॉलेज में आई तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. करियर काउंसलिंग, बहुत सारे ट्रेडिशनल करियर्स थे, और उन्हीं 3-4 ट्रेडिशनल करियर्स में से ही हम कोई करियर चूज किया करते थे. लेकिन आज के समय में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं, और इसीलिए भी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है पेरेंट्स के लिए कि वो कौन सा, या बच्चों के लिए कि वो कौन सा करियर चूज करें. साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, और उसके अंतर्गत काफी सारे चेंजेस हुए हैं. जैसे ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल का हुआ करता था अब 4 साल का हो गया है. पोस्ट ग्रेजुएशन जो पहले 2 साल का हुआ करता था अब 1 साल का हो गया है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ 12th में कई सारे, जैसे पहले मैथ, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ही स्ट्रीम्स हुआ करती थी, बट अब काफी सारे और आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत सारा डायनेमिक सिस्टम हो गया है, और इसके लिए ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इक्वली बहुत कंफ्यूज्ड है. तो ऐसे में अगर एक एक्सपर्ट आपके पास अवेलेबल होता है जो आपको हैंड होल्ड कर पाए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है. साथ ही साथ एआई का जो अभी जैसे हम कहेंगे कि एक वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है एआई का, और 87 मिलियन जॉब्स एआई आने वाले 10 सालों में खा जाएगा. तो फिर बहुत ज्यादा और जरूरी है कि हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से जॉब्स हैं जहां पर फ्यूचर है. 65% जॉब्स जो आज के समय में हैं वो आने वाले 10 साल में रिडंडेंट हो जाएंगे, वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. तो इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अभी से ही काम करें, ताकि आने वाले 10 सालों में वो मार्केट रेडी रहें और करियर वाइज काफी ज्यादा प्रॉस्पर और ग्रो करें. So these were my inputs why career counseling is so very important. Thank you, ma'am. You have highlighted such important issues, especially NEV तो बहुत बड़ा है अभी हमारे ऊपर. कंचन मैम,
what is the role of parents? What is the role they have to play in career decision making process of their children? The parents play a very vital role because सबसे ज़्यादा जो करीब बच्चा रहता है it is to the parent, and for that purpose सबसे पहले parent has to be very very well informed कि आजकल market में हो क्या रहा है. Generally parents they are not able to उनको एक limited information रहती है, and whatever webinars we conduct that the main thing which comes out to be is lack of knowledge. तो उनको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि क्या मार्केट में नए नए करियर्स आ रहे हैं, और प्लस दे शुड आल्सो स्टे कनेक्टेड विद देयर चाइल्ड, क्योंकि अगर बच्चे से आप कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आप बच्चे से वो करियर नहीं उसको सजेस्ट कर पाओगे जो उसके अलाइनमेंट में है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है या नहीं कर सकता है और आप उसको वो करियर सजेस्ट कर रहे हो कि जिसमें वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा आगे जाके, तो इट विल बी misalignment. I have a case with me where the child is a like a son of a very big industrialist, और फादर का यही एक कहना था कि आपको आगे जाके मेरी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है. नाउ व्हेन वी उसने ब्लाइंडली अपने फादर को फॉलो किया, ही went through all the process, and second year में आते आते वो डिप्रेशन में जाने लगा. मदर connected with us for counseling, and जब हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस किया तो यहाँ पे आके उसे ये पता पड़ा कि उसको फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद ही नहीं था. सो दैट वे कितना मिसअलाइनमेंट हो गया कि बच्चा जहाँ फिजिकल एक्टिविटी चाहता ही नहीं है और वहां पे उसे वो काम करवाया जा रहा है जो उसके मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो उससे बिल्कुल अलाइन नहीं होता. तो यहाँ पे जब हम एड टॉक में बच्चों को जिस तरह हम सपोर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू नो द स्टूडेंट यहाँ पे, एंड वी आल्सो ट्राई टू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ जॉब, एंड देन वी हेल्प देम टू मैच कि यही चीज आपके बच्चे के लिए ठीक है. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, try to know the child's qualities, and then decide about the career. And I would also request parents not to compare कि नहीं मेरी फ्रेंड का बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी ऐसा ही करना चाहिए. एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन क्वालिटीज. सो आपको ऐसे नहीं कि हाँ जैसे भीड़ लगी हुई रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि बस मेरे बच्चे को भी मुझे यहीं भेजना है. आप ये देखिए कि आपके बच्चे की क्वालिटीज क्या है. एज डॉक्टर निर्वृति मिश्रा मैम सेड कि आने वाले फ्यूचर करियर्स में इतने सारे करियर्स तो रिडंडेंट हो जाएंगे, तो हमें ये देखना है कि आज हम जहाँ इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए कर रहे हैं क्या वो 10 साल बाद भी सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो सस्टेन करियर करेगा या नहीं करेगा. So it should not be like a rat race or भेड़ चाल. It should be totally, according to me, बहुत सोच समझ के करना चाहिए. और इसके लिए क्योंकि देखिए हर किसी की एक स्पेशलाइजेशन होती है, they should definitely take help of a career counselor because they are specialized in all this. So we at EdTalk are helping and hand-holding all the students till they are saying, even parents are satisfied and content. Thank you, ma'am. Very true. Well said, ma'am. Nivita, these days we are also seeing the world is going in different directions. On one hand, we have AI-powered jobs, and on the other, we have organic farming. What do you think about these unconventional career choices? So Anuradha, yes, like I said कि AI की तो बाढ़ आ गई है, आने वाली है. अभी तो हमने AI का 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है. और AI के एडवेंट्स के बाद जिस तरह का मार्केट सिनेरियो चेंज होगा, जिस तरह के हम नए करियर्स देखेंगे, जैसे आज ही हम देख रहे हैं जो टॉप करियर्स आज के समय में चल रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग हो गया, UI UX डिजाइनिंग हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर्स हो गए. बहुत सारे करियर्स हम जो देख रहे हैं वो AI टेक ओवर कर रहा है. साथ ही साथ हम एक और चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे करियर्स भी होंगे जिसको AI काफी हद तक शायद टेक ओवर ना कर पाए. तो अगर कुछ बच्चे यहाँ हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें किस तरह के करियर्स प्लान करने चाहिए, तो आप उन तरह के करियर्स देख सकते हैं जहां पर
क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, ह्यूमन टच इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एआई जो है वो ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मेडिकल साइंस या मेडिकल प्रोफेशन के बहुत सारे करियर्स जो हैं उनको एआई काफी हद तक टेक ओवर शायद ना कर पाए। अभी भी हम देखते हैं रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, बट स्टिल ह्यूमन टच हो गया। वैसे साइकोलॉजी फील्ड के करियर्स हो गए, सोशल वर्क फील्ड के करियर्स हो गए, ये सभी तरह के करियर्स जो हैं वहां पर एआई रहेगा, सपोर्ट में रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ मार्केट डायनेमिक्स को देखते हुए, बट कंप्लीटली टेक ओवर कर ले ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ एआई बहुत सारी चीजों में सपोर्टिव रोल्स में डेफिनेटली रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर एक बहुत ही प्रोमिनेंट करियर हुआ करता था पहले बच्चों के लिए, लेकिन आने वाले 10 सालों में जो करियर्स में सबसे ज्यादा अगर एआई टेक ओवर कर लेगा तो कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर होगा, क्योंकि एआई के माध्यम से इतने सारे डिजाइन निकल के आ जाएंगे। बट ये स्टिल दीज करियर्स विल होल्ड, बट एआई को उसमें साथ में लेकर चलना। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आज का बच्चा जो कोई भी करियर फील्ड में जा रहा है, साथ ही साथ वो कोई भी एक टेक बेस्ड करियर अपने करियर प्लान में शामिल रखे, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हो, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हो, देयर सो मेनी, फैशन स्टाइलिस्ट, सो मेनी ऑफ देम। तो यस, दीज करियर्स विल बी देयर टू स्टे, एंड पेरेंट्स को भी यही सोचना चाहिए कि अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पे ना डालते हुए ट्रेडिशनल थॉट पैटर्न्स कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, आईएएस ही बनेगा, इन तरह के थॉट पैटर्न से थोड़ा सा हट के जो मार्केट डायनेमिक्स है उसको सोचते हुए नए करियर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि इन तरह के करियर्स को भी एक्सप्लोर करें। So, Kanchan ma'am, sometimes we have seen that students could not make up to the career they have decided. So they get depressed, they get discouraged. What could be done to avoid a situation like this? Yes, there are so many cases we are again getting, like students, what they opt for in 11th and 12th, they are not able to continue after 12th. और इसीलिए as career counselors we at EdTalk suggest that you should always have something as a backup plan, or you should have something parallel as a, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आपको याद हो तो गूगल ने ले ऑफ किए थे अचानक। अब जिस बंदे का 35-40 इयर्स का वो बंदा है, उसका EMI चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, स्कूल की फीस चल रही है, और एकदम से लाइफ एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए तो उसकी लाइफ तो एकदम चैटर हो जाती है। तो इसीलिए आजकल के बच्चे इतने ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं कि दे कैन कैरी ऑन विद 2 different careers at a time. Plus UGC has also permitted that yes, you can have dual degree अभी जो हम करते हैं। तो इफ यू कैन हैव डुअल डिग्री, सो यू शुड हैव 2 पैरेलल, मतलब एक पैरेलल करियर साथ में लेके चलें, ताकि अगर आपकी लाइफ में भगवान न करे किसी वजह से एक चीज स्टॉप होती है तो दूसरी चीज आपके साथ एक बैकअप के तौर पर रहे। आपका सोर्स ऑफ इनकम रुकना नहीं चाहिए। अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि ये दोनों करियर्स शुड बी सच विच आर सस्टेनेबल। और जैसे पेरेंट्स की भी बात मैम ने भी की, they should not focus on only conventional careers, क्योंकि अगर जब हम उनको unconventional careers के बारे में बताते हैं तो they are a bit reluctant कि इसमें हमारा बच्चा क्या कर पाएगा। For example, if we talk about YouTuber, that can be taken as a parallel career, but student मतलब parents will be YouTuber कौन सा career होता है, और event management ये कैसा career होता है, choreographer ये कैसा career है, means they are not able to accept कि ये भी एक करियर होता है, and there is more earning opportunities than what the child is earning in the office or a corporate. So ये सब चीजें, अवेयरनेस, ये सब एक करियर काउंसलर ही बता सकता है पेरेंट्स को, and as we all insist that एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास ये लोग रेफर करें, पेरेंट्स रेफर करें, बच्चे रेफर करें, so that they can help them. That's what I would say. True, ma'am. We need to have a plan A and plan B system in place. Correct. So, Niviti, ma'am, we see that social media is empowering the entire world. Now, social media has given us social influencers and many new budding careers, and they seem to be very lucrative.
So what is the reality of these professions? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने अनुराधा जी। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया एक बड़ा ही प्रोमिनेंट करियर हो गया है और सभी बच्चों को लगने लगा है कि इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा करियर है। हाँ, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत फालतू चीज है। तो कुछ थोड़े से नंबर्स अगर मैं शेयर करूं तो आप देखिए कि अगर आपका बच्चा एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करता है, उसके बाद कहीं ज्वाइन करता है, उसको 30 to 50,000 के बीच में एक सैलरी मिलती है। ये मैं अच्छे शहरों की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट फ्यू इयर्स में उनको ये मिल रहा होता है। उस ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई बच्चा है जो कि अराउंड 100K सब्सक्राइबर्स उसके पास यूट्यूब पे हैं या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर हैं, तो वो कहीं भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होता है। ये नंबर्स बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए बच्चा बहुत 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 मेहनत कर रहा होता है। हम जो एक अपने सामने एक 30 सेकेंड्स की रील देख रहे होते हैं, उसके पीछे 2-2, 3-3 घंटे की तैयारी, प्लानिंग और काफी सारी स्ट्रैटेजी जाती है। तो कुछ रैंडम नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत है। अगर हम देखें कि एक करियर जैसे कि एक जेई है या फिर आईएएस है या यूपीएससी है, उसमें फिर भी मैं बोलूँ कि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, और यहाँ पर हाथ पे गिन ले कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या कितने लोग हैं। तो चैलेंजिंग ये भी उतना ही है जितना एक ट्रेडिशनल करियर है। साथ ही साथ अब देखिए, जैसे मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किया, जिसमें कि उन्होंने इतने सारे क्रिएटर्स को अवार्ड किया, उनके काम को अप्रिशिएट किया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है हमारे लिए कि social media influencers is going to be there and it's going to be a game changer thing. दूसरी चीज, अगेन गेमर्स और कोडर्स के साथ भी उन्होंने एक मीट किया। अगेन दैट इज ऑल्सो समवेयर गिविंग अस अ हिंट कि ये भी करियर इज हियर एंड इट्स हियर टू स्टे। इसके अलावा सोशल मीडिया को मैं देख रही हूँ बहुत तरीके से और भी लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लाइक जस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज लाइक अ जेई, तब पीईटी पीएमटी हुआ करता था, अभी जेई और नीट हो गए हैं, एग्जाम्स चेंज हो गए हैं। पहले सीयूईटी नहीं होता था, अभी सीयूईटी भी आ गया है। तो पैटर्न्स बहुत चेंज हो रहे हैं। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर बच्चा बहुत सारी चीजों में अच्छा हो सकता है। तो एलाइड करियर ढूंढना और जिसमें कि सोशल मीडिया पे अपना एक नाम बना पाना, ये बहुत सारे बच्चों को आजकल इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी होते हैं, राइट, जिनके लिए ट्रेडिशनल करियर शायद उतने सूटेबल नहीं है। तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रही हूँ जो स्पेशल नीड्स के हैं, लेकिन उन्होंने अपने काफी सारे फॉलोअर्स क्रिएट किए हुए हैं। सो आई थिंक ये जो सोशल मीडिया है, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर जो बहुत सारे बच्चों को आजकल अच्छा लग रहा है। एक चीज और देखिए कि मैंने देखा है कि कई बार बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, और कई साल उनके निकल जाते हैं, पर सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो कई सालों की जो मेहनत होती है, उससे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है, जहां वो और बच्चों की मदद कर रहे हैं, और वो एक काफी अगेन प्रोमिनेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो ये सोशल मीडिया जो है बहुत ही ज्यादा बच्चों को हेल्प कर रहा है, नए करियर्स में है। साथ ही साथ इसका बैक साइड और डाउनफॉल ये है कि कई बार इतना ज्यादा हम बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है लाइक्स के लिए, कम अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए। रिसेंटली हमने पढ़ा कि एक बच्चे ने अटेम्प्ट कर रहा था कुछ बनाना सोशल मीडिया के लिए कंटेंट, और एंडेड अप हार्मिंग हिमसेल्फ। बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, एक मानसिक दबाव आ जाता है जस्ट टू बी विजिबल इन दैट वर्चुअल वर्ल्ड। तो इसके प्लस साइड्स तो हैं ही, बट इसके डाउन साइड्स भी हैं। और अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो बच्चों को इस जर्नी, जो कि ये कॉम्पिटिटिव जर्नी है, उसमें उनकी मेंटल हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे। सो आई थिंक पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ शुड लुक फॉरवर्ड टू साइड हसल्स, लाइक एक रेगुलर करियर कर सकते हैं और साइड हसल में एक सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडियम में जो करियर्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। Kanchan ma'am, the next question is with you. We would like to understand what is the process of career counseling and how is it beneficial for the students?
Hello, Kanchan ma'am, are you online? I think Kanchan, there's a technical glitch which she is facing. Nivriti ma'am, could you please answer this question? देखिए, करियर काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले तो अगर हम अपनी प्लेटफॉर्म की बात करें, हम एड टॉक की बात करें, तो जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट और पेरेंट्स आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, ये समझने की बहुत जरूरत है कि यूजुअली 10th क्लास स्टूडेंट और 12th क्लास स्टूडेंट जो है वो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। तो जब वो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है तो वो कैसे ही अपना करियर बहुत ज्यादा प्लान कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में। तो एक करियर काउंसलिंग टेस्ट या एक करियर काउंसलिंग सेशन में हम जो स्टूडेंट है उसको एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवाते हैं। ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो होता है वो बच्चे की पर्सनालिटी, उसके इंटरेस्ट एरियाज, उसके स्किल्स एंड एबिलिटीज को वर्ल्ड ऑफ करियर से मैच करता है और उसके बाद कई सारे करियर ऑप्शंस बच्चे को देता है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था एज एन एमबीए और उसके बाद फिर मैं मूव ऑन हो गई साइकोलॉजी की फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, और आज मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ। तो जो मैंने एमबीए उस समय किया वो मुझे मेरे बिजनेस की मार्केटिंग, फिनेंस और सारी चीजों में हेल्प आ रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि मार्केट के डिमांड है अभी कि हम साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बूम पे है ये करियर, तो इसीलिए प्रोएक्टिवली मैं इस फील्ड में आ पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने करियर काउंसलिंग के फील्ड में गई तो मैंने खुद का भी करियर काउंसलिंग किया और मुझे रियलाइज हुआ कि एक करियर के साथ, देखिए अब करियर ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई और अब सदैव के लिए उसके साथ बंध गए हैं, डिवोर्स कर सकते हैं, राइट। तो किसी एक करियर में हम स्टार्ट करें अगर, और वो करियर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या हमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है या पेरेंट्स के प्रेशर में या भेड़ चाल में मेरे फ्रेंड ने किया, तो इस तरीके से करियर डिसीजंस नहीं होते हैं। करियर डिसीजंस एक साइंटिफिक मेथड से होते हैं। जब पेरेंट्स ग्रो अप हो रहे होंगे तब ये मेथड्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज के समय में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना ही समझदारी है। तो ये करियर काउंसलिंग के प्रोसेस में आपके बच्चे का असेसमेंट होगा, उसकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड ऑफ करियर से मैच करेंगे और कई सारे करियर ऑप्शंस उसको सजेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही बच्चा आगे करियर डिसाइड करेगा। जैसे इसमें एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया जो कि स्लो लर्नर था, राइट, और उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। उसको था कि मैं अपना करियर मैं साइंस फील्ड में जाना चाहता हूँ। जब हमने उसका करियर असेसमेंट किया तब हमने देखा कि उसकी एकेडमिक इनपुट्स और स्किल्स एंड एबिलिटीज साइंस करियर के लिए काफी कम थी, और क्योंकि वो स्लो लर्नर था। तो उसके बाद हमने उसकी और स्किल सेट आइडेंटिफाई किया और हमने देखा कि उसको फूड इंडस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो फूड टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में फिर उस बच्चे ने अपना करियर आगे बनाया। तो बिना अपने बच्चे की क्षमताएं जाने हम उन्हें किसी करियर में धकेलें, इसमें कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए क्योंकि आज के समय में ये साइंटिफिक मेथड अवेलेबल है तो इसको यूज करते ही करियर काउंसलिंग करते हुए ही बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। Thank you so much, ma'am. So we have, I think we have covered a lot of topics related to career decision making. I would now like participants to ask if they have any questions to ask from our experts. So our experts will be very happy to answer all your queries and questions. So. हेलो मैम। हेलो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एक्चुअली ग्रेजुएशन तो हो चुकी है बट आई एम स्टिल स्टक कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मैं एक सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट हूँ और मैं मतलब इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ फिजिकली और उन सब में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैम ने बोला और आप सबने मुझे बताया कि करियर बहुत जरूरी होता है और आज जो हम टॉपिक सोच रहे हैं वो 10 साल बाद हमें समझ आता है कि हम नहीं कर सकते। तो एज यूजुअल मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आज जो मैंने टॉपिक सोचा है टीचिंग का या कोई सा भी कोर्स करने का,
अगर वो 10 साल बाद बेनिफिशियल नहीं रहा तो, और मैं ऐसा क्या है जो मैं खुद से कर सकती हूँ खुद की एबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जिससे मैं बिजी भी रहूं और मुझे ये फील भी नहीं हो कि दैट आई एम अनेबल टू डू समथिंग लाइक दैट और एक्सरसाइज। थैंक यू। Okay, thank you, Barkha, for this lovely question. And Barkha, सबसे पहले तो टीचिंग भी एक ऐसा करियर रहेगा जिसको बहुत हद तक देखिए, अभी भी हम लोग ऑनलाइन स्टडी मीडियम है अवेलेबल, लेकिन तब भी टीचिंग एक ऐसा करियर रहेगा जो कि आने वाले समय में सार्थक रहेगा, राइट? तो आप जिस करियर के बारे में प्लान कर रहे हैं, टीचिंग करियर के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो आने वाले समय में रहेगा। आप एआई के माध्यम से, एआई की हेल्प से अपनी स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को और इनहैंस कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि आप एक सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट हो, तो चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, यू नो द वर्ल्ड इज योर कैनवस। तुम कुछ भी कर सकती हो दुनिया में जो तुम चाहो, और आजकल तो लोगों ने बड़े बड़े करियर बनाए एक छोटे से कमरे में बैठकर। तो आप डिजिटल मीडियम की कोई भी स्किल्स, टेक बेस्ड कोई भी स्किल्स, जैसे किसी भी तरह की ऑनलाइन डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह की स्किल्स भी सीख सकती हूँ, क्योंकि ये भी आपके करंट सिचुएशन को और के लिए भी बहुत सूटेबल है। प्लस आने वाले समय में मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होने वाली है, अभी भी है और बहुत होगी। तो कोई भी टेक बेस्ड, एआई बेस्ड डिजाइनिंग, कोडिंग, इस तरह की भी चीजें बरखा आप सीख सकते हैं, और इस तरह के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और टीचिंग तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इट विल स्टे। एआई हेल्प करेगा, पर एआई टीचर्स को रिप्लेस कर ले, आई डोंट थिंक ऐसा समय आना चाहिए। नहीं मैम, मेरा तो गवर्नमेंट टीचिंग का एक्चुअली प्लान है आगे जाके, और मैं इसीलिए थोड़ा सा ऐसे स्टक हो गई थी क्योंकि मेरे को सब बोल रहे थे कि तेरा हो पाए नहीं हो पाए, तेरी सिचुएशन ऐसी है, तू क्या करेगी, तेरा बैकअप प्लान क्या है अगर तेरा टीचिंग में नहीं हो पाया तो उसके लिए मैंने आपसे पूछा कि एज राइट। बैकअप प्लान में क्या रख सकती हूँ। यस, ये मैंने आपको बताया। देखिए, एक तो गवर्नमेंट जॉब्स भी रहेंगे, राइट? गवर्नमेंट जॉब्स कहीं नहीं जा रहे हैं, एआई इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगे। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, साइड हासिल के लिए आप कोई भी टेक बेस्ड, एआई बेस्ड इस तरह के कोर्सेज भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मेरा ना आज तक पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा है और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे किसी भी मतलब फील्ड में लेके जाओ नहीं आया है, तो अपने इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? बहुत ही अच्छा सवाल बरखा। इंटरेस्ट तो जगाना पड़ता है ना? लाइक पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी चीज, अगर पढ़ाई में ही आपका इंटरेस्ट है तो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे तो लाइफ में पढ़ाई के आगे भी और सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा आपको खुद को पुश भी करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप सीपी इंडिविजुअल हैं, तो बहुत ज्यादा आउटसाइड एक्सपोजर आप नहीं ले पाए हैं, बहुत सारे चीजें थोड़ी सी लिमिटाइज हो जाती हैं आपके लिए। लेकिन उसके अलावा भी जस्ट सिट एंड थिंक कि कौन सी वो 5 चीजें जो तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं, उन चीजों को एक्सप्लोर करो और वहां पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुद को पुश करना चालू करो। Okay, thank you so much. So if you don't mind, ma'am, may I ask Yes. question to Barkha? Yes. बरखा, मुझे एक बात बता सकते हो कि आपको जी। टीचिंग क्यों पसंद है? क्या आपको नॉलेज शेयर करना पसंद है? मैम बिल्कुल मुझे टीचिंग पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और जब मैं 8th क्लास में थी, मतलब मेरे करियर की बेस पे थी, तब से ही मेरे को ये था कि मुझे ना मतलब लोगों की हेल्प करनी है, So क्योंकि that is the मैं, main motive, मतलब आपको लोगों को हाँ हेल्प जी, करना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। और मेरा ऐसा था कि मैं जब घर पे रहती थी और पढ़ती थी और पढ़ाने टीचर्स नहीं आते थे, तो मुझे उसकी वैल्यू पता चल गई थी। तो मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करूंगी, जाके खुद पढ़ाऊंगी जिनको हेल्प की सच में जरूरत है। और मैं नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसमें बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है और Exactly. कोई भी आ जा सकता है। लेकिन जरूरत हम जैसे बच्चों को है जो बेचारे घर में बैठे हैं, जिनको उनका बेस भी नहीं पता है कि वो क्या करें और क्या ना करें।
भगवान की दया थी और सब कुछ, पेरेंट्स अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे समझ ही नहीं पाते, जिनको उनका नाम तक लेना नहीं आता है, बोलना तक नहीं आता है, लिखना तक नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं। तो जो वो एक थी ना चाहत कि पढ़ाई क्या होती है और इस टाइप में क्या होता है, तो वो चीज मैंने मेरे अंदर देखी कि यार मुझे अगर कोई आज पढ़ाता तो मैं 90% अबाउ लाती, लेकिन नहीं पढ़ाया तो मैं अपने हिसाब से जैसे पढ़ी, मैं अपने हिसाब से उसको कवर किया और आज Right. मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए हैं, बट वो ऐसे ही कि करियर का पता नहीं था, कुछ आता पता नहीं था, तो ऐसे जल्दी जल्दी में बस ले कुछ लिया भी और दे दिया, ले लिया, ठीक है, कुछ ठीक है, फिक्स नहीं हुआ। आई जी अंडरस्टैंड। मैम। सो बरखा, व्हाट आई सजेस्ट, जैसे निवृत्ति मैम ने भी अपने सजेशंस दिए, क्योंकि मैं भी टीचिंग फील्ड से रही हूँ, मैंने 12 जी साल मैम। टीचिंग की है। आप कहीं पे भी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकती हैं, प्लस एनजीओज को ज्वाइन कर सकती हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने वाला कोई है नहीं। तो अगर आप ये सब करेंगी तो इससे आप मतलब नो डाउट उन बच्चों का भला होगा जो जिनके पास कोई है नहीं पढ़ाने वाला। तो बेसिक एक जो एजुकेशन है वो आप दे सकती हैं। तो ऐसे साइड साइड के तौर पे आप बहुत सारी चीजें कर सकती हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं जैसे, उनके भी अलग यस मैम। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको उनकी तरफ यस तो मैम। लोग जाने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि यार ये तो समझेगा ही नहीं, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए, राइट? बहुत ज्यादा पेशेंस तो चाहिए और उन लोगों को तो बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत होती एग्जैक्टली है। तो जब आपके अंदर ये एक ईश्वर ने इच्छा डाली है कि आपको हेल्प करके लोगों को अच्छा लगता है, तो आप अपार्ट फ्रॉम, मैं स्कूल टीचिंग इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ बरखा, क्योंकि देखिए विदाउट एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम लाइफ नहीं चलती, राइट? तो हमें एक फिक्स जी सोर्स मैम। ऑफ इनकम तो चाहिए ही चाहिए। और टीचिंग कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो एक ह्यूमन टच उसमें देते हैं वो कोई रोबोट या एआई नहीं दे सकता, ठीक है ना? जी। तो ये चीज आपकी एक रहेगी, प्लस साइड हसल के तौर पे या एक पैरेलली आप एनजीओ या स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ा सकती हैं। तो इससे आपको एक अलग ही जी सुकून मैम। मिलेगा, क्योंकि स्कूल में जब आप कराएंगे ना, आपका नेटवर्क अपने आप ही बनता जाएगा। पीपल कम टू नो कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाती हैं। यस मैम, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ और इसी के लिए मैंने स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन करने का डिसीजन लिया वेरी है। नाइस, वेरी मैं नाइस। पूरी इंफॉर्मेशन और सब कुछ एक बार एक्नॉलेज करके फिर ही मैं बच्चों को जो है पढ़ाना चाहूंगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता सही मैम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑल द बेस्ट बरका। थैंक यू सो मच मैम। Is there anybody who wishes to ask some question? Yes, Anuradha. Hi. Hi, Swati. First of all, I would like to thank you, Nivriti and Kanchan ma'am, so giving us so many inputs about our next generation for their careers. Let me brief you. My daughter is in 12th standard. She has opted commerce, and we rather don't want her to go into the conventional sort of education or career. Or rather, we want something that it should be last for a longer time, because we have seen in COVID a lot of jobs has been taken up, and we want something that, for example, AI will be like replacing millions of jobs in next 1 decade. So we want her to pursue something that it will be with her for lifetime. Kanchan ma'am, would you like to answer this question? श्योर श्योर। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक कि आप जो चाहती हैं मैम कि आगे जाके करियर जो भी ये करे सस्टेन करे, नंबर वन इट शुड नॉट बी अ कन्वेंशनल वन। सो देयर आर सो मेनी फाइनेंस रिलेटेड करियर्स इफ शी इज विलिंग टू गेट इनटू फाइनेंस, first of all, No, ma'am. not into finance, so why did she She get is into not. commerce? I think first, ma'am, Uh, she needs to be assessed. हाँ, And then what is Yeah, that's the what my best- question is, like why commerce? Because commerce का कई बार रीजन पता है मैम क्या होता है रिवा मैम, कि कई बार बायो नहीं लेना था, मैथ्स नहीं लेना था, इसलिए कॉमर्स ले लिया। So is this the reason for your daughter as well? yes, ma'am. Because in
commerce, we are having n number of opportunities, and she is the woman. We know our daughter very well, and 10th में हमने उसको already career counseling करा ली थी. Then we have opted for this commerce because जो हमने career counseling कराई थी, psychometric test already we have done, and उसके अंदर digital marketing, product marketing and ये सब marketing और ये उन्होंने हमको ऑप्शन दिया था. बट नाउ शी इज इन 12th स्टैंडर्ड, हमको वापस से सेम प्रोसीजर करवाना है, लाइक थ्रू एड टॉक. सो वी वांटेड टू एनालाइज व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर हर. सी व्हाट फर्स्ट थिंग इज, एज एक जो करियर प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है नो योरसेल्फ. पहले तो खुद को जानना जरूरी है, खुद की क्वालिटीज जानना जरूरी है. जब मुझे क्वालिटीज मेरी पता पड़ जाएंगी, तो जो भी आजकल के अनकन्वेंशनल करियर्स हैं उनमें से जिससे मेरी क्वालिटी मैच करेगी उसी करियर में मैं खुश रहूंगी मैम. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आज हम कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं किसी भी शॉप पे, तो मुझे मेरी साइज का चाहिए. इट इज नॉट कि मतलब ट्रेंड में भले ही हो, पर अगर मेरी साइज का नहीं, आई विल नेवर बी कंफर्टेबल, राइट. सिमिलरली आज पहले हमें आपकी बेटी की क्वालिटीज जैसे कि पर्सनालिटी, उसको कौन सी चीजें मोटिवेट करती हैं, उसकी स्किल्स क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है. कई लोगों को तो मैम, डोंट टेक मी रॉन्ग, एप्टीट्यूड का मीनिंग भी नहीं पता होता. तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों होना चाहिए. और ये सारी चीजें जब हमें पता पड़ेंगी तो उससे उस चीज से रिलेटेड जो करियर्स हैं वही हम इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं. एंड दैट कैन बी कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल बोथ. एंड वॉट एवर शी डिसाइड्स फर्दर, then that is her decision and your family's decision. Yes, ma'am, we know our daughter very well. That's why we've already opted for this, and this is the second So time. that can be done through psychometric test only, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. जो हमारे पास psychometric test है मैम, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. I hope you agree that everyone has two kinds of behavior. घर पे हम बिल्कुल अलग और अपनी स्कूल में या बच्चा बिल्कुल अलग रहता है, राइट. अब मुझे ये देखना है कि आपकी बेटी का नाम बता दीजिए मुझे. वो आपकी बेटी बोला अच्छा नहीं लग रहा है. रेवा. ओके, सो नहीं बोली रेवा. तो रेवा का जो बिहेवियर होगा डेफिनेटली स्कूल में मैम अलग होगा. एंड जो हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो इट इज हैविंग सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हर वर्क प्लेस. इसकी वर्क प्लेस क्या है? स्कूल. तो जब स्कूल पे से रिलेटेड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, देन वी कम टू नो कि रेवा अपनी काम की जगह पे कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी स्किल्स क्या है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी सजेस्ट करियर्स. तो ये एक असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैम वी आर ऑल नॉट एस्ट्रोलॉजर्स. तो हम एक बार में तो बच्चे को जान नहीं सकते ना. तो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हमें चाहिए बच्चे को जानने के लिए. Would you like to add something to it? या रेवा, व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपने बोला आप पहले ही 10th में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करा चुके हैं. व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कनेक्ट विद एडटॉक टीम एंड आप अपनी पुरानी साइकोमेट्रिक रिपोर्ट जो है वो हमें लाकर दिखा सकते हैं. क्योंकि हमने अगर किसी बच्चे का 10th में साइकोमेट्रिक टेस्ट किया है तो वो ग्रेजुएशन पर भी जब मेरे पास आता है तो वो एकदम सेम लाइंस पे ही चल रहा होता है. तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं. प्लस देखिए, मैनेजमेंट एक और स्ट्रीम है जो कि कहीं नहीं जा रही है. जब तक लोग हैं तब तक मैनेजमेंट लगेगा ही. तो भले ही ट्रेडिशनल टाइप का मैनेजमेंट कोर्सेज रिडंडेंट तो नहीं होंगे, बट उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी. जैसे इंजीनियरिंग में पहले सिविल मैकेनिकल टॉप पे हुआ करता था, अभी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये टॉप पर है, बट इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रहा है. वैसे ही मैनेजमेंट भी कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में बहुत सारे नए डोमेन्स आ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, जैसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. तो ये नए डोमेन्स जो हैं वो आपकी पुरानी रिपोर्ट के साथ हम देख के द टीम फ्रॉम एडटॉक कैन गाइड यू दैट आगे 12th के बाद आप कौन से कोर्स के लिए एनरोल करें. एंड आई होप you have taken the CUET exam, or then otherwise you start looking for colleges जो non CUET पे एडमिशन दे रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you All so the much. best, Reva. All the best, Reva. Thank you. Yeah, hi Sanvi. What is your question? She has written a question in a chat box, Sanvi Dubey. She's saying that I am currently in 12th standard with commerce stream. Ma'am, I have decided to pursue product designing and interior designing as my career option. But now you just said that this job is risky, so now what to do? And can you please list what I can do as a backup plan? That's Sanvi Dubey's question. Sanvi,
Now, see, career, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये फ्यूचर में रिस्क कैटेगरी में तो डेफिनेटली आ रहे हैं, बट ओवरऑल इससे ये समझ में आ रहा है कि डिजाइन फील्ड में आपका काफी इंटरेस्ट है। और अभी के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोमिनेंट डिजाइनिंग की फील्ड में आ रहा है तो एक UI UX यानी कि ऐप, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट डिजाइनिंग जो होता है, उस पर आप एक अपना ध्यान ले जा सकती हो। दूसरा, एक और जो बहुत प्रोमिनेंट अभी आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक्स। तो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग यानी कि बिकॉज यूर अ क्रिएटिव पर्सन, तो अगर आप अपना इंटरेस्ट क्रिएटिविटी को मेंटेन करते हुए और मार्केट ट्रेंड्स को समझते हुए अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब तरह की चीजों की तरफ थोड़ा सा फोकस करोगे तो शायद ये और भी बेटर करियर्स होंगे आपके लिए फ्यूचर में, राइट? डेफिनेटली अगेन लेट अस से, देखिए चैट GPT आने के बाद लोग कह रहे थे कंटेंट क्रिएटर्स का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैट GPT पे जब मैं कोई कंटेंट डालती हूँ तो मुझे तो वो पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि चैट GPT की भी अपनी लिमिटेशंस है। प्लस कभी भी कोई भी करियर्स जो या AI जो है वो क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपके प्रोडक्ट्स जो है, जो एक AI या एक मशीन जनरेटेड और एक इंडिविजुअल, एक इंसान की जो खूबी होती है उसको AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इतना स्मार्ट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नहीं हो जाएगा AI, राइट? तो यस, अगर आपको लगता है कि आपकी डिजाइनिंग, इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी बहुत हाई स्पेक्ट्रम पर है तो आप इन फील्ड्स में भी कंटिन्यू कर सकते हो और इस फील्ड में आप AI को अपना साथी बनाकर चलना, इंटीरियर डिजाइनिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। प्लस डिजाइनिंग के और जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। I hope, Sanvi, I've answered your question. Thank you so much, ma'am, Kanchan ma'am, and everything, ma'am. Is there anybody who wants to ask some more question from my experts? So I think I think there are no more questions. We would like to wrap up the session. So over this insightful session, we can say that career decision making is not related to job, but one's evolvement as a career, as an individual over the course of life. On behalf of EdTalk, I would like to thank you, Navrito ma'am and Kanchan ma'am, for such an enlightening session. We also would like to thank Team Belen who helped us organize this webinar. At last, I would like to thank parents and students who became part of this webinar. We hope our session was enriching and you can connect with us anytime for personalized coaching and counseling. Thank you so much.